Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start a class 11th history, chapter 10, theme 10, displacing indigenous people. My dear, in this chapter we are reading about the problem of the natives. We had already discussed about the very important and the different topics, meaning of reservation, how the industrialization was introduced in America, how it was different from the British Industrial Revolution, and how the settlers established themselves in that new land. Bison was slaughtered, the problems that was faced by the common people. These all points we discussed. My dear, today we will read the topic wind of change. The topic wind of change and the constitutional right. First, we are going to read the constitutional right, and then after we will discuss the topic wind of change. Constitutional right, the democratic spirit which had been the rallying cry of the settlers in their fight for independence in the 1770s, came to define the identity of the USA against the monarchies and aristocracies of the old world. Also important to them was that the constitutional included the individual's right to property, which the state could not override. 1717 के डिकेड्स में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतंत्र की भावना के जिस नारे के तहत लोगों ने एकजुटता बनाई थी, वही पुरानी दुनिया की राजशाही और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। इसके लिए एक और भी महत्वपूर्ण बात थी, उनके संविधान में लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार शामिल करना। प्रॉब्लम यह थी कि संविधान में जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं दी गई थी, ये बात उन लोगों के अधिकारों के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार, ये लोकतांत्रिक अधिकार था कि व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिल जाए और अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजने का अधिकार मिल जाए, और संपत्ति का अधिकार। यहां पे आश्चर्य रूप से आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए ही था। एक कनाडाई मूल के निवासी डेनियल पाल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पे किया था। इसके आधार पर उसने दलील दी थी कि अमेरिकी मूल के निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रमुखी आंदोलन के बीज बोए थे। We were not the savage. Page number 33. This was clearly explained that how the natives play a very important role in the freedom of America. महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी अपने सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा है। उन्होंने लिखा है कि सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है, मुनाफे को सीमाहीन चाहत। My dear, if you will read your line which is given in your book, it is very clearly explained what I am saying. But both democratic rights, the right to vote for the representative to Congress and for the president, and the right to property, were only for white men.
Daniel Paul, a Canadian native, pointed out in 2000 that Thomas Paine, the champion of democracy at the time of the War of American Independence and the French Revolution, used the Indians as a model of how society might be organized. They argued that the natives Americans, by their examples, showed the seeds for a long drawn out movement towards the democracy by the people of Europe. We were not the savage. Point is that he used the term, he used this argue the Native Americans by the examples sowed the seed for a long drawn out momentum towards democracy by the people of Europe. उसने दलील दिया अमेरिका के मूल निवासियों ने एक मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रमुखी आंदोलन के बीज बोए थे। अगर डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए मांग उठी तो उसके बीज अमेरिका में ही बोए गए थे। इस तरह की बात सबसे पहले रखी गई। कार्ल मार्क्स 1880 to 1883, the great German philosopher, described the American frontier as the last positive catalyst, utopia, the limitless nature and a space to which the limitless thirst for profit adopts itself. मार्क्स लिखता है कि सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है, मुनाफे की सीमाहीन चाहत, ये बातें कहने का। और इन चीज़ों के बाद अमेरिका में विंड ऑफ चेंज की बयार बहती है, बदलाव की बयार आती है, बदलाव की लहर आती है। लोग अपने राइट्स के लिए एक बार फिर आगे आते हैं। नॉट टिल द 1920s did things begin improve for the natives people, for the USA and Canada. The problems for Indian administration, a survey directed by social scientist Lewis Merriam, published in 1928, only a few years before the USA was swept by the major economic depression that affected all its possible, painted a grand picture of the terrible poor health and education facilities for native in the reservation. 1920 के डिकेट्स तक यूएसए और कनाडा के मूल निवासियों नेटिव्स के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी ने कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मरियम के निर्देशन में संपन्न हुए एक सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे निवासियों नेटिव्स की हेल्थ, उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज और उनकी पॉवर्टी को बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाया गया था। The problem of Indian administration, a survey directed by the social scientist Lewis Merriam, they published in 1928. Only a few years before, the USA was swept by a major economic depression that affected all its people, painted green picture of the terrible poor health and education facilities for the native in reservation. White Americans felt sympathy for the natives who are being discouraged from the full exercise of their culture and simultaneously denied the benefits of citizenship. This led to landmark law in the USA, the Indian Recognition Act 1934, which have natives reservation the right to buy land and take loans. White Americans के मन में the problem
ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस इस सर्वे को पढ़ के उनके प्रति सिंपैथी जागी, जिन्होंने अपनी संस्कृति को पूरा पूरा निभाने से नेटिव्स को, जिनको अपने देश में अपनी संस्कृति को निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ सिटीजनशिप के लाभ से भी उनको वंचित रखा जाता था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया, 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने, लोन लेने का अधिकार मिला। कुछ सुधारवादी स्टेप उठाए गए, एक्ट पारित किया गया। एक्ट था 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और मूल निवासियों को कुछ अधिकार दिए गए। 1950-60 के डिकेड्स में यूएसए और कनाडा की सरकार ने नेटिव्स के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने की इस उम्मीद पर विचार किया कि इससे वो मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। लेकिन जो नेटिव्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में उनके मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ यूएसए की नागरिकता स्वीकार करने की बात कही कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी भी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने एक यूनाइटेड रूप से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन, डिबेट्स की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की, एक सीरीज डिबेट की चली। 1982 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों की स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया। मतलब 1969 टू 1982 एक लंबी डिबेट, धरना प्रदर्शन, स्ट्राइक की सीरीज चली और तब जाके उनके अधिकार उनको मिले। इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी हैं। अब यह बहुत साफ है कि इन दोनों देशों के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के लिए अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है, और ख़ास तौर से कनाडा में अपने पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की। ऐसी दावेदारी 80 के डिकेड्स तक उनके पुरखे नहीं कर सकते थे। सुधारवादी चरण से अब नए लोग ये बात कह सकते थे कि जमीन, ये देश, ये हमारा है और हम ही इसके असली वारिस हैं। माय डियर, in the 1950s and 1960s, the USA and the Canadian government thought of the ending all special provision for the natives in the hope that they would ending all special provision for the natives in the join the mainstream that adopt the European culture, but the natives did not want this. My dear, again I am going to read this line because this is very important. In the 1950s and 1960s decades, the US and Canadian government thought of ending all special provision for the natives in the hope that they would join the mainstream, that is, adopt European culture. But the natives didn't want this. In 1954, the Declarations of Indian Rights prepared by them, a number of native peoples accepted citizenship of USA, but on traditions would not be interfered with. A similar development occurred in Canada. In 1969, the government announced that they would not recognize Aboriginal rights. The natives, in well-organized opposition move, held a series of demonstrations and debates. The question could not be resolved till 1982, when the Constitutions Act accepted
the existing aboriginal and treaty rights of the natives. Many details remain to be worked out. Today, it is clear that the native peoples of both countries, though reduced so much in number from what they had been in the 18th century, have been able to assert their rights to their own culture and particularly in Canada to their sacred land in a way their ancestors could not have done in the 1980s. My dear, जो अधिकार उन्हें मिले वो 1980s के पहले उनके पुरखों को नहीं मिले थे, उनके अपने लोगों को ये अधिकार नहीं मिले थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। एक लंबी श्रृंखला के बाद, एक लंबे डिबेट्स के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका और कनाडा के मूल बासिंदों को, वहाँ के नेटिव्स को उनके अधिकार मिले। My dear, what I want to tell you that the rights which was asked for very long time by native peoples, it was given. There are so many liberal act was passed by US and Canadian Parliament in the favor of the natives. Now they can purchase and sell their land, they can take loan. No doubt it was the very good step in the favor of the natives. But it was not complete. धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ, बदलाव आया और एक लंबे समय के बाद अब काफ़ी हद तक नेटिव्स को उनके अधिकार मिले। लेकिन आज अमेरिका में नेटिव्स की संख्या बहुत ही कम बची है। नेटिव्स 0.2.5 इस तरह के परसेंटेज के आधार पर अपने अपने क्षेत्रों में है, 1% में भी नहीं है। कई सारे क्षेत्रों में तो आज वो लुप्त प्राय हो गए हैं। माय डियर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू रीड, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। आई नो एवरीवन अवेयर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया. As in the American, human habitation in the Australia has a long time. Australia has a long history. The Aborigines, a general name given a number of the different societies, began to arrive on the continent over 40,000 years ago, possibly even earlier. They came from New Guinea, which was connected to Australia by a land bridge. The native traditions, they didn't come to Australia, but had always been there. The past centuries were called the dream time, something difficult for Europeans to understand. The sense of distinctions between the past and present is blurred. ऑस्ट्रेलिया उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही मानव के निवास का एक लंबा इतिहास अपने आंचल में सजोई हुई है। शुरुआती मनुष्य, आदिम मनुष्य, प्रिमिटिव मानव, आदि मानव जिन्हें एबोरिजिनीज कहते हैं। एबोरिजिनीज वर्ड मैंने आपको पहले बताया था कि यह कई भिन्न भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 ईयर एगो या उससे भी पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लैंड ब्रिज के माध्यम से यहाँ के जो लोग थे वो न्यू गिनी से आए। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे। हिस्टोरियन कहते हैं कि ये लोग न्यू गियाना से आए, लेकिन जो नेटिव्स हैं उनका मानना है कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो नेटिव्स हैं उनका अपनी परंपराओं के आधार पर कहना है कि वो कहीं से आए नहीं, बल्कि वो यहीं के मूल बासिंदे हैं। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए एक मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर और उसको क्लियर करने के लिए जो एविडेंस थे वो उनके पास नहीं थे।
वो बहुत ही धुंधला था। 18वीं सेंचुरी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय, 350 to 750 तक की कम्युनिटीज़, हर समुदाय की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति अलग अलग थी। आज भी 200 भाषाएं ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती हैं इन नेटिव्स की। देसी लोगों का एक विशाल समूह उत्तर में रहता है। इसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते हैं। एबोरिजिनी शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% ही ये नेटिव्स बचे। My dear, this is very strange. In the late 18th century, there were between 350 to 750 natives communities in Australia, each with its own language. Even today, 200 of these languages are spoken. There is another large group of indigenous people living in the north called to Torres Strait Islanders. The term Aborigine is not used for there as they are believed to have migrants from elsewhere and belong to different race. Together, they make up 2.4% of Australia's population in 2005. संख्या उनकी कितनी कम होती जा रही है, डे बाय डे उनकी संख्या घटती जा रही है। ये क्या शो करता है? ये कहता है कि कहीं न कहीं आज वो आधुनिकता के दौर में पिछड़ रहे हैं। उसके पीछे निश्चित रूप से सरकार के उचित सहयोग का अभाव है। Australia is a sparsely populated, and even now most of the towns are along the coast where the British first arrived in 1770 because the central region arid deserted. ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत चितराई हुई है, बहुत इधर उधर है, अस्त व्यस्त है, स्पार्सली है। और आज भी यहाँ से ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं। यहाँ 1770 से ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे क्योंकि बीच का इलाका काफ़ी डिजर्टेड एरिया है। द यूरोपियंस रीच्ड ऑस्ट्रेलिया 1606, डच ट्रेवल्ड साइट ऑस्ट्रेलिया 1642, द तस्मान लैंड्स on the islands later named Tasmania. 1717 James Cook reached the Botswana Bay named New South Wales. 1788 British penal colony formed, Sydney founded. Sydney 1788 में फाउंड किया गया। That is Australian continents. My dear, एक छोटा सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ये आपके सामने है। अगर आप मैप में देखें ऑस्ट्रेलिया को तो आपको ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन के बीच में चारों तरफ से कवर दिखाई देगा। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो इन माई क्लास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, इस मैप के साथ इनकी नेटिव्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।